السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. Thursday evening. چلیے دعا پر اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. So we asked Allah for the beneficial knowledge. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا کر. آمین. Over to Chand Aunty for Darud Ibrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ameen. Alhamdulillah. So once again, welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں کون سا پارا چاند آنٹی؟ پہلا پارا، پارا نمبر 1 سورت البقرہ. The Cow. The Cow. آیت نمبر 27 today. انشاءاللہ. اوکے. تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، سب مل کر پڑھتے ہیں آیت نمبر 27 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمیم تلاوت ہو رہی ہے پہلے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. چلیے آیت نمبر 27 we were studying yesterday. Now kindly share the screen. آیت 27 میں ہم نے کل کیا پڑھے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا. یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ الفاسقین. ہاں فاسق. فاسق کون ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ 27 میں فرما رہے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ. You can see it on the screen. Those people who break the promise, the covenant of Allah. Min ba'di mithaqihi. After confirming it, after binding it. وَيَقْطَعُونَ. And they cut ma amara Allahu, whatever Allah has commanded bihi with it. What is the command? An yuswala, that keep the ties. Yuswala, be joined. Were, and scroll up please. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. And they do mischief in the earth. Ulaika, those people, humul khasirun, they are the losers. تو فاسقین کی ڈیفینیشن میں 3 پوائنٹس ہم کو ملے. کیا ہے؟ نمبر 1 وہ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں. نمبر 2 رشتے داریاں کاٹتے ہیں. اور نمبر 3 زمین میں فساد کرتے ہیں. ریپیٹ کریں گے پلیز شاہن آنٹی. جی ہاں. فاسق وہ ہے جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، نمبر 1. سیکنڈ از جو رشتے کاٹتے ہیں، اور تھرڈ از وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں. ہاں تو اس میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اللہ کا وعدہ توڑنے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب وعدہ لیا تھا ہم سے؟ ایک حدیث ہے نا اس پہ. جی باجی، ہاں جب آدم ہاں علیہ شمیم السلام بتاؤ. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیے تھے تب انہوں نے سبھی روحوں سے وعدہ لیے تھے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیے تھے؟ کہ آپ کہ میں آپ کا رب ہوں کہ نہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں. یس، سورت الاعراف میں اس کا ریفرنس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تمام روحوں سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ایم آئی ناٹ یور لارڈ؟ تو ہم سب کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہے، وی آر دا وٹنسز، کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ پرومس اللہ سے کیا. تب تو صرف ہماری روح تھی، وی ہیڈ نو باڈی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی دی، تب ہم نے پھر سے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، وہ ہم نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا یا نہیں؟ whether it is by birth اور by choice، دونوں بھی طریقے سے. تو ہم نے اس پرومس کو پختہ کیا، میثاقی ہی، isn't it، پکا کر دیا. اور اس کے بعد اگر ہم اللہ کے حکم نہیں مانتے تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ توڑنا. گاٹ اٹ؟ اور یہ کون ہے پھر جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر واپس وعدے کو پکا کرتے ہیں، لا الہ کہتے ہیں، اور پھر اللہ کا حکم نہیں مانتے؟ تو پھر یہ کون سی کیٹیگری میں سے ہے فاسق؟ مومنوں میں سے یا کافروں میں سے؟ کافروں میں سے. کیسے آنٹی؟ نہیں، پہلے مومن ہے لیکن زبان سے، دل سے نہیں. وہ تو منافق کی کیٹیگری آئی، برابر، وہ الگ کیٹیگری ہے. یہ فاسقین ہے. یہ فاسقین کی کیا اوپر ہم نے پڑھے کہ جب مچھر کی آیت قرآن پاک میں آئی تو یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اس آیت میں کہ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا،
कि ऐसे एग्जाम्पल से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे हिदायत पाते हैं, और नहीं गुमराह होते सिवाय फासिक। तो हिदायत मिलने के बाद फिर जो अल्लाह की किताब में डाउट करे, समझे, जो शक करे अल्लाह की किताब में, और फिर इसी शक की वजह से, इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अल्लाह के ऑर्डर्स को ना माने, तो वो फासिक है। तो फिर आपको क्या लगता है अभी फासिक कौन सी कैटेगरी में से, आप बताओ। फासिक मोमिनों में से है या काफिरों में से? फिर तो वो मोमिनों में से ही हुए, और मुनाफिक भी जो हमने पढ़े वो भी मोमिनों में से हुए। यस, सो टुडे वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि क्या मैं अल्लाह का हर वादा पूरा करती हूँ, हर हुक्म मानती हूँ। जैसे हमने पढ़ा है समिअना व अतअना, आई लिसन एंड आई ओबे। लिख लीजिए, समिअना व अतअना, आई लिसन एंड आई ओबे। हमने सुना और हमने इताअत की। सो वी लिसन एंड वी ओबे। तो क्या हम ओबीडियंट है? अगर नहीं तो फिर फासिक की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है कि वो रिश्तेदारी तोड़ते हैं। अभी रिश्तेदारी के बारे में अपने लास्ट क्लास में पढ़े, एक्सक्यूज मी, क्या हदीस पढ़े थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। पढ़े थे? क्या मतलब है इसका? देखिए स्क्रीन पर भी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आप बाद में नोट डाउन कर ले। इसको रिपीट कीजिए प्लीज चांद आंटी। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। सॉरी। अल्लाहु Those who break अकबर। relationships shall not enter the paradise. Yes, those who break the relationships shall not enter the paradise. ये ऐसा क्यों रखा अल्लाह ताला ने कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में ही दाखिल नहीं होगा? तो रिश्तेदारी, कौन सी रिश्तेदारी के बारे में बात हो रही है? द ब्लड रिलेशंस, खून के रिश्ते। तो यू टेल मी कि खून के रिश्ते हमारे लिए किसने चूज किए? जरा सोचना है इस पर कि मैं अपने दोस्त, आई चूज माई फ्रेंड्स, आई मे चूज माई नेबर्स, आई मे चूज माई स्कूल, आई मे चूज माई कॉलेज, बट कैन आई चूज माई blood relatives? No. Can I choose who will be my mother, who should be my brother, who should be my father's brother? No choice. तो ये किसकी चॉइस है फिर? अल्लाह की। अल्लाह की। तो जब हम रिश्ता तोड़ते हैं तो हम किसकी चॉइस से एतराज करते हैं? Whose choice do we defy? अल्लाह's चॉइस। तो फिर ये भी अल्लाह की नाफरमानी हुई ना। तो इतना बड़ा, इसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा क्यों दे दिया कि रिश्ता काट दिया तो जन्नत में ही दाखिल नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ऐसे बनाया है ना कि वी नीड आवर रिलेटिव्स। अगर माँ नहीं होती तो बच्चा कैसे पैदा होता? अगर बाप नहीं होता तो बच्चा कैसे पैदा होता? फिर वो उसी माँ के पेट में, इन द सेम वूम I was born, I lived in the same womb for 9 months almost. My brother also lived in the same womb for 9 months. Also my sister. तो ये मेरे भाई बहन है ना, हम लोग से सब एक ही माँ बाप से पैदा हुए। तो ये अल्लाह की चॉइस है, एंड इसी खून की वजह से जो मोहब्बत होती है आपस में वो और कहीं भी नहीं होती। लेकिन झगड़ा भी इसी रिश्ते में होता है। बट अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की खातिर रिश्ता नहीं तोड़ोगे तो जन्नत में दाखिल होगी इंशाल्लाह। नाउ सेकेंडली ऑल्सो, रिश्ता काटना या रिश्ता तोड़ना ये कब होता है? जब अनबन होती है ना, जब हम किसी का हक नहीं देते या हक से ज्यादा एक्सपेक्ट करते तो झगड़ा होता है। और झगड़ा अल्लाह को पसंद है क्या? नहीं। इसी आयत में आ गया ना थर्ड पॉइंट, वो फसाद करते हैं जमीन में।
तो फासिक की थर्ड क्वालिटी है फसाद करते हैं, यानी झगड़ा करते हैं। तो रिश्ते जहाँ कटते हैं, टूटते हैं, तो वहां पे झगड़ा तो होता ही है ना, और फिर खानदान के खानदान डिवाइड हो जाते हैं, है ना। फैमिलीज गेट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ दिस फाइट्स एंड दिस क्वारल्स। और क्वारल किस वजह से होते हैं? या तो प्रॉपर्टी के ऊपर से, या गोल्ड के ऊपर से, या छोटी छोटी चीजों में जहां हम एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं। तो अल्लाह की जन्नत इज द प्योरेस्ट प्लेस, और अल्लाह ताला को वहां झगड़ालू लोग पसंद नहीं। तो झगड़ालू लोगों के लिए जन्नत में एंट्री नहीं है। तुमने झगड़ा करके रिश्ते तोड़ दिए तो फिर तुम्हारे लिए कोई एंट्री जन्नत में नहीं है। नाउ, क्या हमने इस पर कोई इंट्रोस्पेक्शन किया? किसी ने किया? हमने लास्ट क्लास में एक हदीस भी पढ़े, एक स्टोरी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी सुनाई थी, नहीं? लास्ट में एक स्टोरी सुनाई थी, चांद आंटी याद है? डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा की स्टूडेंट की। जी बाजी, I know, I remember. Yeah. So what did you introspect about it? जी बाजी, you are very right कि रिश्तेदारी it is the most fragile thing और बहुत जल्दी टूट जाती है, तो we have to be extra cautious. Okay. क्या कभी सुना है कि भाई बहन के बीच में तलाक होता है? नहीं बाजी। माँ बेटे के बीच में तलाक होता है? नहीं बाजी। चाचा भतीजे के बीच में? No. No. So you cannot break these relationships. ये खून के बने हुए रिश्ते, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है कि तुम इसे तोड़ सको। Got it? तो अगर जिसने तोड़ा उसने अल्लाह को नाराज किया। और कुरान पाक में एक आयत मिलती है कि रिश्तों को काटने वाले पर अल्लाह की लानत, अस्तगफिरुल्लाह। और इस आयत में आया उलाइका हुमुल खासिरून, ये सब नुकसान उठाने वाले हैं। व्हाट नुकसान? दुनिया में भी नुकसान ही होता है। जब झगड़ा होता है, रिश्तेदारी टूटती है, तो क्या होता है? बहुत झगड़े होते हैं, फसाद होता है, बीपी हाई होते हैं, गुस्सा, गाली गलोच, अस्तगफिरुल्लाह, एंड देन कोर्ट केसेस फॉर द प्रॉपर्टी। सो दुनिया में ऑल्सो यू आर पेइंग फॉर इट, एंड आखिरत में जन्नत ही नहीं मिलेगी, तो फिर लूजर हुए या नहीं हुए? अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। नाउ समटाइम्स अगर हमने आज ये हदीस पढ़ ली और हमने सोचा कि अरे मेरे कौन से चाचा है जिससे मैं बात नहीं करती, मेरी कौन सी फूफी है जिससे मैं बात नहीं करती हूँ, सो चलो आज मैं उनसे माफी मांग लूं, सॉरी बोल दूं और वापस लेट मी रिकंसील, है ना? ऐसा हम सोचते हैं ना? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? किसी ने सोचा ऐसा? जरा हाथ ऊपर करें प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू थॉट ऑफ रिकंसिलिंग विथ योर रिलेटिव्स? माशाल्लाह। तो when we think about it, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग, हम उनकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाए तो हो सकता है कि they will not respond। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने थोड़ी ये आयत पढ़े, आज तो हमने ये आयत पढ़े है ना। सो इम्पैक्ट तो मुझ पर हुआ, आप पर हुआ, उन पर कैसे होगा? नहीं होगा, वो तो गुस्से में ही रहेंगे। तो ये हदीस सुनिए, दिस इज फॉर यू एंड मी। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्ते वाले हैं। आप स्क्रीन पर देखिए इसे, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं रिश्ता मिलाता हूँ और वो तोड़ते हैं। मैं अच्छा सुलूक करता हूँ और वो जहालत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हकीकत में तू ऐसा ही करता है, मीन्स इफ इट इज अ फैक्ट व्हाट यू आर सेइंग, तो तू उनके मुंह पर जलती राख डालता है और हमेशा अल्लाह की तरफ से तेरे साथ एक फरिश्ता रहेगा जो तुमको उन पर गालिब रखेगा जब तक तू इस हालत पर रहेगा। In English also we can read it. So one person says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have relatives with whom I try to have close relationships, but they break the ties.
I treat them well, but they treat me ill. I am sweet to them, but they are harsh towards me. Upon this, the Holy Prophet ﷺ said, if it is so, as you say, then you, in fact, are throwing hot ashes upon their faces, and there would always remain, now this is a good news, there would always remain an angel with you on behalf of Allah, who would keep you dominant over them so long as you adhere to this path. Sahih Muslim. समझ में आया? तो अगर हम अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, सामने वाला अगर बुरा भी करता है तो उस पर क्या फरमाया कि उस पर तो तुम आग के अंगारे, हॉट ऐश फेंक रहे हो उसके चेहरे पर, बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज अडैमेंट, तकब्बुर उसके अंदर है. और तुम्हारा फायदा क्या है? देयर विल बी एन एंजल ऑलवेज विथ यू, और वो एंजल तुम्हारे साथ होगा, फरिश्ता, इस वजह से तुम हमेशा उसके ऊपर रहोगे, डोमिनेंट, जीतोगे हमेशा, तुम्हारी हार नहीं हो सकती. अल्हम्दुलिल्लाह. अब और क्या चाहिए हमको? इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो सकती है? Aren't you happy with this? Very much, Baji. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह. और एक हदीस देखिए, ये सुनन इब्न माजा में है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सलाम को आम करो. Number 1, सलाम को आम करो means you have to keep on wishing each other salam. खाना खिलाओ. Number 2, लोगों को खाना खिलाओ. Number 3, रिश्तेदारियां मिलाओ, रिश्तेदारियां मिलाओ. Number 4, रातों को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो. 4 अमल, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे. सुबहान अल्लाह. What are the 4 points? Come on, read out, Shamim. जी बाजी. Read in English. Read in English, please. जी बाजी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, I'm sorry, in English, na baji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "O people, spread the greeting of salam, feed others, keep good relation with relatives, and pray during the night when people are sleeping. If you do so, you will enter paradise with salamati." Inshallah. So ये किसके orders है? ये सब अल्लाह के orders है. So we have to fulfill them. And when you spread salam, greetings, तो झगड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है. जब आप लोगों को खाना खिला रहे हो तो किसी की हेल्प कर रहे हो तो झगड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है. अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? नहीं हो रही है. और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक कर रहे हो, you are treating well your relatives, so there is no question of any fight or corruption, inshallah. So then you are a winner in this world as well as in the hereafter. जन्नत में आसानी से दाखिला. बहुत मुश्किल है ये काम सब, बहुत मुश्किल है. It is very easy baji actually. है ना? अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह हम सबको ऐसे अच्छे काम करने वाला बनाए. फिर इसमें जो आया है, थर्ड पॉइंट इज युफसिदूना फिल अर्द, वो फसाद करते हैं जमीन में. सो फसाद इज नॉट ओनली झगड़ा फसाद, बट पोल्यूशन, करप्शन. इतनी अच्छी दुनिया अल्लाह ने बनाई. आपको याद है लास्ट टाइम ऑल्सो आई स्पोक अबाउट पोल्यूशन, दैट वी पुट प्लास्टिक इन द garbage, in the green garbage, we mix it and the cows and animals eat it. Also in the same garbages, it floats in water, in seas and rivers, and the fishes also eat them. So this is how we are spoiling the flora and fauna and the balance of earth. अभी ये बारी एक दूसरा एग्जाम्पल दूं. एवरीडे लाइफ में वी हैव टू बी लिटिल अलर्ट. एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा टूथब्रश. टूथब्रश सबको पता है. What material is it made up of? It is made up of plastic.
How many toothbrushes have we used until now in our life? There is no count. इतने टूथब्रश हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो मिट्टी में, they cannot be degenerated. So वो जमीन को हमने जमीन में ये फसाद किया हुआ है ना? We are spoiling the earth. आप सोचे कि कैसी हो जाएगी ये जमीन नेक्स्ट 50-100 years में. आज जो we have seen कि कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, बर्फ पिघल रही है नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, what is happening? इतना बैलेंस बिगड़ा हुआ है, and still we don't stop because हम सुन्नतों को फॉलो नहीं करते. In opposite to the plastic toothbrush, what is the sunnah option? The miswak. मिसवाक किस चीज से बनी होती है? बनानी पड़ती है हमको branch from the tree's branch. Direct a branch of the tree, the stick from the wood of the branch, and उसको आप यूज करते हो वो अपने आप छोटा होता जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, उसको कहीं फेंकना भी नहीं पड़ता है. फेंको भी तो अर्थ विल डिजेनरेट इट. अल्हम्दुलिल्लाह. आप कोई ना, और उसमें ना कोई खर्चा लगता है, और सुन्नत भी अदा हो रही है. Alhamdulillah. And today if you see in the market, have you seen wooden toothbrushes have come? Did you see? Yes. तो वो रिवाइव हो रहा है. फाइनली हम वापस सुन्नत तरीके पे आ ही रहे हैं, लेकिन वो भी क्यों बना रहे हैं? लकड़ियां तोड़ के क्यों बना रहे हैं उसको? डायरेक्टली why don't we use the miswak? अल्हम्दुलिल्लाह. So हमारी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और हम जमीन में फसाद नहीं कर रहे होंगे, हम फासिकीन की लिस्ट में नहीं आएंगे. दिस इज वन एग्जाम्पल. सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइफ कि हम क्या कर रहे हैं और कैसी हमारी जिंदगी गुजार रहे हैं. बाय मेनी टाइम्स हम ये तीनों काम कर रहे होते हैं. हम अल्लाह की नाफरमानियां भी कर रहे होते हैं, हम मोमिन, और हम रिश्तेदारियां भी तोड़ रहे होते हैं, और हम इस तरह pollution and corruption भी कर रहे हैं, isn't it? Then how do we expect to be the winners, successful people? Question mark. एक और हदीस है बहुत प्यारी, लिख लीजिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दोनों जहानों के बेहतरीन अखलाक न बताऊं? क्या मैं तुम्हें दोनों जहानों के बेहतरीन अखलाक न बताऊं? नंबर 1, रिश्ता काटने वालों से जुड़ो. रिश्ता काटने वालों से जुड़ो या जोड़ो. नंबर 2, ना देने वालों को दो. ना देने वालों को दो, यानी जो तुमको नहीं देते हैं तुम उनको दो. एंड नंबर 3, जालिम के कसूर माफ कर दो. जालिम के कसूर माफ कर दो. जालिम कौन होता है? जो तुम पर जुल्म करे, तुम्हें सताए. हदीस ओवर. कैन यू रीड इट फॉर मी प्लीज शादान जी? जी हाँ, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं दोनों जहानों के बेहतरीन अखलाक न बताऊं? नंबर 1, रिश्ता काटने वालों से जुड़ो. नंबर 2, ना देने वालों को दो. एंड नंबर 3, जालिम के कसूर को माफ कर दो. हदीस ओवर. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें भी हमको कितने अच्छे एटिकेट सिखाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो तुमसे रिश्ता तोड़ता है तुम मत तोड़ो, तुम बल्कि और जोड़ो. और रिश्ता जुड़ता कैसे है? कैसे जुड़ता है? गिफ्ट देने से, isn't it? सलाम करने से, माफी मांग लेने से. तो अगर हम माफी मांग लेते हैं तो क्या फायदा होता है? विल रीड अ हदीस फॉर यू. आज हम लोग बहुत सारी हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नंबर 2 आ गया उसी में, ना देने वाले को दो. कि रिश्ता इसीलिए टूटा कि
आपस में वो कहता है उसने मुझे नहीं दिया, उसने नहीं दिया, शादी थी गिफ्ट नहीं आया, गिफ्ट दिया भी तो इतनी बुरी क्वालिटी का दिया, सबको बुलाया मुझे नहीं बुलाया भाई ने। सो सेकेंड पॉइंट इज नहीं देने वाले को दो। तो जो तुमको नहीं दे रहा है तुम उसको दो, फिर वापस दो, और अच्छे से दो, और ज्यादा दो। इससे रिश्तों में जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है, नहीं होती? सोचो, कोई आपको एक बार गिफ्ट दे रहा है, 2 बार दे रहा है, 3 बार दे रहा है, तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी या अभी भी गुस्सा रहेगा? स्माइल So, आएगी, isn't it? और रिश्ता अपने आप जुड़ जाए। ब्यूटीफुल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और थर्ड क्या है? वापस जालिम के कसूर माफ कर दो। जिसने तुम्हें सताया, जिसने तुम पर जुल्म किया, तुम उसको माफ कर दो। मैं क्यों माफ करूं भाई, उसने मुझे इतना सताया। तो क्योंकि हम भी तो किसी को सताते, हमने भी तो बहुत जुल्म किया है लोगों पर। तो अगर हम चाहते हैं कि आसमान वाला मुझे माफ कर दे, तो मुझे चाहिए कि मैं जमीन वालों को माफ कर दूं। अब कौन है आसमान वाला? अल्लाह। अगर मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझ पे रहम करे और मेरे गुनाह माफ कर दे, तो मुझे भी दूसरों के कसूर माफ कर देने हैं इंशाल्लाह। अब बताओ कि कितने अच्छे हो जाएंगे हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी। Isn't it beautiful? So let us follow these hadith इंशाल्लाह। और जो भी हम पढ़ रहे हदीस, आप लोग आई होप नोट डाउन भी करते हो, और क्या इन हदीस को लोगों तक पहुंचाते हो, अपने घर में किसी के साथ शेयर करते हो या नहीं? अच्छा, ये वाली एक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली एक हदीस जरा पढ़ लीजिए चांदन की स्क्रीन पर से। जी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said, whoever takes a path upon which to obtain knowledge, Allah makes the path to paradise easy for him. अल्हम्दुलिल्लाह। शमीमा, आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिए नीचे से, उर्दू में। जी। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म सीखने के लिए कोई रास्ता अख्तियार किया तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हदीस ओवर। What do you learn from this, Shamim? That we have to always be in the quest of obtaining knowledge, and Allah Which will make knowledge? Which knowledge? ilm ki कौन सा इल्म? दीनी इल्म, कुरान, हदीस, सुन्ना, राइट? जी बाजी। तो ये खुशखबरी हुई ना हम सब के लिए। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग हियर, 76 सिस्टर्स, माशाल्लाह। आप सब के लिए खुशखबरी है कि हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए ये रास्ता हमने अभी चूज किया है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या फरमाया कि अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अभी हम लोग जो रोज जन्नत की हदीस पढ़ रहे हैं और आयतें पढ़ रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट पाथ। व्हाट डू यू से? इजंट दिस द इजीएस्ट पाथ? Yes. तो हमने चूज किया कि हम कुरान का इल्म सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इसी रास्ते को हमारे लिए, जन्नत का रास्ता, इसी रास्ते पर आसान फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, फिर ये फासिकीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह हम सबको ऐसे फिस्क और नाफरमानी से बचाए। नेक्स्ट आयत पर चलते हैं, आयत 28। काइंडली शेयर द स्क्रीन। कैफ तकफुरूना, आयत नंबर 28। कैफ कैसे, कैफ कैसे, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुफ्र? इनकार। कैसे तुम इनकार करते हो? बिल्लाही, अल्लाह का। किसका इनकार करते हो? अल्लाह का। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन, कि कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। वकुंतुम, और हालांकि थे तुम, वकुंतुम और हालांकि थे तुम, अमवातन, क्या थे तुम? अमवातन, मुर्दा, बेजान। अमवातन में मैयत वर्ड निकलता है, देखिए। सो यू वर लाइफलेस, बेजान।
कब की बात हो रही है? ये हमारी जिंदगी के पहले की, बिफोर बर्थ. फिर अहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुमको. किसने जिंदा किया तुमको? अल्लाह ने. और तुम के लिए क्या वर्ड आया है? कुम. और कुंतुम में तुम. तो ये कितना इजी है, isn't it शमीम? कुंतुम मीन्स तुम, थे तुम, है ना? और कुम का मतलब भी क्या है? तुम. तुम. इजी. Very Easy? very easy. यस. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? कैफ तकफुरूना, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का. वकुंतुम अमवातन, और हालांकि थे तुम बेजान, मुर्दा. फअहयाकुम, फिर जिंदा किया तुमको. किसने? अल्लाह ने जिंदा किया तुमको. सुम्मा, उसके बाद. युमीतुकुम, आफ्टर दैट, वो मौत देगा तुमको. युमीतु में मैयत वर्ड है, फिर से मौत. वो मौत देगा कुम, तुमको. अभी कुम समझ में आया? कुम इज तुम, और तुम भी आता है, तो तुम इज ऑल्सो तुम. किससे बात हो रही है? तुमसे. गॉट इट? किससे बात हो रही है? तुमसे. कौन तुम? जो पढ़ रहा है, उसी से बात कर रहे अल्लाह ताला, हमसे. सुम्मा, उसके बाद क्या है? इलैहि तुरजऊन, फिर इलैहि, उसी की तरफ. किसकी तरफ? ही किसके लिए? अल्लाह के लिए. अल्लाह की तरफ. तुरजाऊन, तुम सब लौटाए जाओगे. रुजू वर्ड है इसमें, रुजू. रजा, रुजू का मतलब होता है रिटर्न बैक. तो फिर तुम सब अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाओगे. विल डू इट इन इंग्लिश. कैफ, हाउ. कैफ, हाउ. क्वेश्चन फॉर्म में है. takfuruna, how do you disbelieve, how do you deny in Allah, how do you disbelieve in Allah. Wa kuntum, while kuntum, you all were. Amwatan, you all were dead, you all were lifeless. Fa ahyakum, then Allah gave you life, then Allah gave you life, that is birth. Summa, then yumitukum, then Allah gave you death, or He will give you death. Summa, then after that, yuhyikum, then after that Allah will resurrect you. Allah will give you a life once again. Summa, then ilayhi turja'un, towards Allah you all will return. All of you will return back to Allah. In this ayat, we see there are 4 stages of life. They are in pairs, 2 pairs. 2 times death and 2 times life. Isn't it? So Allah Ta'ala asks कि कैसे तुम इनकार करते हो? Now I have this one question for all of you and myself. क्या है ये क्वेश्चन स्क्रीन पर? What is this? Can you read it? Who are you? Who are you? Who are you? बताइए, है इसका कोई जवाब? मेरे पास जवाब ये है कि I am अंजुम. Then or who are you? I am a girl. Who are you? Inaya also has some answers. Yes, Inaya, who are you? I am a Muslim. I am a Muslim. Very good. Who are you? One more I am question. Huzur Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam's ummati. Mashallah. And who are you? And I am a girl. You are a girl. Okay. Yes. Where were you before 20 years? Do you have an answer? Where were you before 20 years? कहाँ थी तुम 20 साल पहले? No, I don't know. I don't. Where will you be after 20 years? I don't know. We can't say. We can't say the future. Yes, very good. Alhamdulillah. Nice. So यही questions है यहाँ पर. Allah Ta'ala says कि who are you?
Who made you? कहाँ थे तुम पैदाइश से पहले? Before 20 years, before 50 years, before 100 years, था तुम्हारा कोई वजूद? So तुम क्या थे? You were lifeless, isn't it? Before I was born, I was lifeless. मैं तो मुर्दा थी, मेरा कोई नामो निशान नहीं था, ना मेरा नाम था, ना मेरा चेहरा था. Nobody knew about me, anything. तो मैं तो मुर्दा थी, और फिर मुझे किसने जिंदा किया? अल्लाह ने जिंदा किया, isn't it? हम लोग कहते हैं who gave you birth? My mother gave you birth. आपको पता है कि वो माँ को भी नहीं पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है, जब तक के कोई साइन ना मिले. सो उसके अंदर वो लाइफ कौन डालता है? अल्लाह डालता है. Who does it? Allah does it. And the mother also doesn't know many a times. And then when she misses her period, or she goes for a sonography, or she starts vomiting, then she realizes कि बाबा कुछ तो गड़बड़ है. And then she goes for the test, then the urine test shows the report that you are pregnant. तब तक उसको खुद को पता नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो कुछ करती थोड़ी है, उसके हाथ में थोड़ी है लाइफ. वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिंदगी को उसके पेट में, वूम में डाल देता है. अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है. उसके बाद as long as Allah Ta'ala has ordained life for you, for me, जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी है, उसके बाद मौत. ये मौत भी किसी के हाथ में है सिवाय अल्लाह के. Nobody can kill you, and you also cannot kill yourself until Allah ordains. ठीक है ना? तो जो लोग अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेट मी टेल यू, सुसाइड इज कुफ्र. ये बहुत बड़ा गुनाह है, और सुसाइड करने वाला, खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता. सो कितनी ही प्रॉब्लम्स हो आपको, कितनी ही टेंशन हो लाइफ में, सुसाइड इज नो ऑप्शन, बिकॉज इट विल टेक यू टू हेलफायर. अस्तगफिरुल्लाह. तो मौत भी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है. आप देखते हो कि कभी कभी पूरी बिल्डिंग, बिकॉज ऑफ सम रीजन, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और उसमें सब लोग, उनकी मौत हो जाती है, और एक छोटे ही सी बच्चा कहीं, एक जान उसी पत्थरों के बीच में, मलबे के बीच में, वो जिंदा है. हाउ कम? बिकॉज मौत तो किसी के हाथ में नहीं सिवाय अल्लाह के. मेनी अ टाइम्स डॉक्टर्स से दैट ये इंसान है ना, ये 2 दिन से ज्यादा भी इसकी लाइफ नहीं, जिंदा नहीं बचेगा, और उसके बाद वो कई महीने और साल जी लेते हैं. isn't it? तो मौत भी किसी के हाथ में नहीं. और उसके बाद जो है, सुम्मा युहयीकुम, दोबारा वो जिंदा करेगा तुमको. दिस इज द नेक्स्ट साइकिल. मौत के बाद कहाँ जाएंगे? कब्र में. और उसके बाद जब सब के सब मर जाएंगे और वो कयामत का दिन होगा, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा सबको जिंदा करेंगे. अभी हम पूछेंगे कैसे जिंदा करेंगे? हाउ विल अल्लाह डू दैट? सो इज इट डिफिकल्ट फॉर अल्लाह? जिसने हमको पहली बार जिंदा किया था, तो अगर किसी के लिए मुश्किल है तो पहली बार मुश्किल होती है ना, सेकेंड टाइम तो नहीं होनी चाहिए. तो अल्लाह के लिए तो ना पहली बार मुश्किल है और ना सेकेंड टाइम. अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है. वो दोबारा जिंदा करेगा कयामत के दिन, एंड फिर सारा हिसाब किताब होगा, और उसके बाद आइदर जन्नत और दोज़ख. तो वापस किसके पास जाना है? सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी के पास लौटना है, अल्लाह ही के पास. यू हैव टू गो बैक. तो सब कुछ अगर अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर आपके और मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं. isn't it? है कुछ हमारे हाथ में? नहीं है. फिर क्यों हम लोग अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, और कैसे हम अल्लाह का इनकार करते हैं?
अल्लाह ने जो क्वेश्चन किया, कैफ तकफुरुना, हाउ डू यू डिसबिलीव इन अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हाउ डेयर यू, हु आर यू, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है जब भी हम अल्लाह की कोई नाफरमानी करने चलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। प्लस एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने बताई कि ना दुनिया में आने के लिए तुमसे पूछा गया, ना तुमको बनाने से पहले पूछा गया कि तुमको कैसा बनना है, फेयर या डार्क या टॉल या शॉर्ट, या आईज कैसी हो, बाल कैसे हो, वहां पर भी चॉइस अल्लाह की है। फिर डेथ के वक्त भी चॉइस अल्लाह की है। तो अगर हर वक्त चॉइस अल्लाह की है, और अगर फिर हम हर काम भी अल्लाह की मर्जी के कर ले, जैसे हम क्या बन जाए, मुस्लिम, आई सरेंडर अल्लाह, ऑल, हर बात में चॉइस तेरी है, तो मैं क्या करूंगी ना इस जिंदगी और मौत के बीच में, वो भी मैं तेरी ही बात मानूंगी, जो तू कहे मैं वही करूंगी। तो क्या होगा कयामत के दिन? कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इस बंदे ने सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक किया, तो आज तू बता ए बंदे कि मैं तेरे साथ क्या करूं, यू वांट जन्ना और जहन्नम, द चॉइस इज योर्स। फिर अल्लाह ताला हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह। दैट मीन्स इट विल बी एज पर आवर डीड्स, और डीड्स हमने किसके कहने के मुताबिक की? अल्लाह के। तो फिर अल्लाह ताला हमारी बात मानेंगे ना। तो फिर जो हमने किया वो सही होगा या गलत होगा? अगर हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर काम किया है, तो फिर हमने कैसे काम किए, अच्छे या बुरे? टेल मी। अच्छे काम किए बस। तो फिर अल्लाह की जन्नत हमारे लिए पक्की। लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी चलाई, हालांकि मर्जी तो सारी अल्लाह की है, तो फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला अपनी मर्जी चलाकर जहन्नम की आग में फेंक देंगे, बिकॉज तुमने दुनिया में अपनी मर्जी चलाई। सो दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस आयत, कि जब वापस अल्लाह ही के पास जाना है, सारा फैसला उसी के हाथ में है, तो फिर बात किसकी माननी है? अल्लाह ही की माननी है। और ये प्रॉमिस हम अल्लाह से कर चुके हैं और हर रोज करते हैं। कब करते हैं? क्या प्रॉमिस करते हैं सूरत अल फातिहा में एवरी डे? व्हाट इज द प्रॉमिस दैट वी मेक? तेरी ही इबादत करूंगी और तुझसे ही मदद मांगूंगी। यस ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वी प्रॉमिस अल्लाह एवरी डे कि अल्लाह सिर्फ तेरी बात मानूंगी और तू जो कहे वही करूंगी, और दुआ और मदद भी सिर्फ तुझी से मांगूंगी। तो फिर ये क्वेश्चन आया, कैफ तकफुरुना, फिर कैसे तुम इनकार करते हो? नाउ अनदर पॉइंट, एवरी डे लाइफ में व्हाट डू वी सी? अभी गर्मी का मौसम खत्म हुआ, सब जगह सूखा पड़ गया था, isn't it? And after that, what do you see on the earth? Do you see a small little green plant growing on the earth? नजर आता है? जब इतनी गर्मी के बाद हल्की सी बारिश होती है, तो नजर आता है कि नहीं? जी हाँ, आता है। तो जब पूरी जमीन सूखकर मुर्दा हो गई थी, उसके बाद हमको अगर अल्लाह ताला देते हैं, ये वापस लाइफ देते हैं जमीन को, तो क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है कि दोबारा वो, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन, आती है ना दोबारा लाइफ, जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है, isn't it? तो क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है कि वो दोबारा हमको जिंदा कर सके? कैन यू हियर मी? Not Yes. at all, Baji. It is अल्लाह not के at लिए all. मुश्किल नहीं है। It is not हाँ, at all difficult for Allah. अल्हम्दुलिल्लाह, यस। एंड इसी से रिलेटेड आगे की आयत भी है, वो भी कर लेते हम लोग इंशाल्लाह। सो इस आयत में हमने क्या सीखे? देयर आर 2 पेयर्स, है ना? अल्लाह ताला ने जोड़ी जोड़ी में बनाया है। सो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज मौत, फिर जिंदगी, फिर मौत, फिर वापस जिंदगी। गेट इट? Yes.
यस और इसमें से 3 स्टेजेस में हमारा इम्तिहान है और लास्ट स्टेज में हमारा क्या है, उसका रिजल्ट है, दैट इज फ्रूट इंशाल्लाह. तो हर स्टेज में डिफिकल्टी और इम्तिहान तो होना ही है, बिकॉज ये दुनिया हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है. We go to the last ayat of this ruku, that is 29 inshallah. Over to Shamim. 29 huwa Baji, your voice is lost. आयत 29 हुआ लजी, वो जिसने खलक, उसने पैदा किया, लकुम लिए तुम्हारे, मा फिल अर्दी, जो कुछ जमीन में है, जमीआ सब के सब, सुम्मा फिर, देखिए सुम्मा बार बार आया पिछली आयत में भी, सुम्मा फिर, इस्तवा वो मुतवज्जा हुआ, उसने अपना अटेंशन, इला समाई आसमान की तरफ किया, इला यानी तरफ, अस्समाई आसमान की तरफ, फसव्वा हुन्ना, फिर उसने, किसने, अल्लाह ने, सव्वा यानी बराबर किया, बैलेंस किया, हुन्ना उनको, किसको, आसमान को, सब असमावात, कितने आसमानों में डिजाइन किया, सब 7 7 नंबर 7, समावात आसमान, अल्लाह ताला ने एक आसमान को 7 आसमानों में डिजाइन किया, वह हुआ और वो कौन, अल्लाह, बिकुल्ली हर एक, शैइन अलीम है, हर चीज का इल्म रखने वाला है, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है. इंग्लिश में करते हैं, हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी ही alone, Allah, Allazi is the one, khalaqa, he created, lakum for you, lakum for you, ma fil ardi, whatever is in the earth, jami'a all together, everything, summa then after that, istawa Allah Allah turned, ila samai towards the sky, fasawwahunna then he leveled, designed, sab asamawat the sky into 7 skies, wahuwa and he alone, bikulli shay'in alim with all, everything, Allah is knowing, Allah has the knowledge of each and everything. Okay, इस आयत में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि Allah has not only made you and created you, and Allah did not leave you alone, but Allah created the earth and everything in the earth for you. इस आयत में मेरा फोकस न जमीन पर है ना आसमान, अगेन मेरा फोकस है लकुम, लिए तुम्हारे, क्या क्या बनाया अल्लाह ने, पूरी जमीन, द अर्थ, एंटायर अर्थ, और जमीन में हर चीज को अल्लाह ने बनाया फॉर यू. अरे बाप रे, ये सोचकर ही मेरा तो आई कैन नॉट थैंक अल्लाह इनफ, कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करूं कि तूने ये जमीन मेरे लिए बनाई, और जमीन के अंदर हर चीज, अब क्या कुछ नहीं है जमीन में, जरा देखो आसपास, जल्दी जल्दी बोलो इनाया, व्हाट डू यू सी ऑन इन द अर्थ, व्हाट ऑल डू यू सी, इनाया जल्दी जल्दी बताओ. हाँ इनाया, वी विल अनम्यूट यू. हाँ बोलो इनाया, क्या क्या देखते हो आप जमीन में. हाँ पत्थर, प्लांट्स, पत्थर, प्लांट्स, माउंटेन्स, फिर नदियाँ, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स. यस, फ्रूट्स,
fruits, अच्छे flowers. Okay. And all type of food. हाँ Do you see और your mother? हाँ मेरी मम्मी मेरे अब्बू. Do you see your house? Yes, I see my house, I see buildings, I see roads. अच्छा, wait, I will ask you. Do you see sun? सूरज देखती हो? हाँ. तो सूरज से तुमको लाइट मिलती है ना. अगर सूरज की लाइट ना हो तो तुम कुछ भी नहीं देख सकोगी, isn't it? Yes. तो अल्लाह ने सूरज को किसके लिए बनाया? इनाया के लिए बनाया. समझी? सूरज को किसके लिए बनाया? द सन माइटी, अल्लाह इनाया के लिए बनाया. चांद दिखती हो, इतना बड़ा चांद, वो भी जी. इनाया के लिए बनाया. आसमान इनाया के लिए बनाया. जमीन इनाया के लिए बनाया. समंदर, अच्छा मम्मी भी इनाया के लिए बनाया, दादी भी इनाया के लिए बनाया. Isn't it? अभी अपने आप को देखो मिरर में. Look at yourself in the mirror. Do you have Yes. eyes? Yes, alhamdulillah. So you use your eyes, isn't it? But Yes. you do not share it with anybody. लेकिन ये जो सूरज चांद सितारे, everything we share with the whole world, isn't it? हाँ. तो अल्लाह ने हम सब के लिए ये सब कुछ बनाया है, isn't it? Yes, और alhamdulillah. Alhamdulillah, every day we see and we use these things and we live our life. हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया. ऑक्सीजन हम देख नहीं सकते, but we breathe, नहीं तो कैसे हम जिंदा रहेंगे? So this oxygen, water, food, light, basic necessity. इसके बाद भी सब कुछ है. एरोप्लेन्स भी, हम एरोप्लेन्स में भी उड़ रहे हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं और अच्छे खाने भी खा रहे हैं, अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं. सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया. लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि सब कुछ अल्लाह ने, ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, तो हम इस दुनिया में गुम हो गए. अरे ये दुनिया हमारे आसानी के लिए बनाई है, इसमें गुम होने के लिए नहीं बनाई. अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, आई हैव चिल्ड्रन, तो मेरे बच्चे मेरी जिंदगी ना बन जाए. मेरी जिंदगी का हर वक्त मैं सिर्फ मेरे बच्चों के पीछे ना गुजारूं, बल्कि आई हैव टू राइज अबव दैट. अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह के हुक्म मान ले. अल्लाह ने और भी करने के काम दिए, बट हमारा काम क्या हो गया आजकल? अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मैं सिर्फ पूरा दिन खाने की अलग अलग डिशेस और उसी की रेसिपीज ढूंढ रही हूँ. तो खाना मेरी नेसेसिटी है. मेरा 24 आवर्स उसी में अगर गुम हो जाए तो ये पूरे कुरान में जितनी बातें अल्लाह ने बताई है वो सब मैं कब करूँ? आई हैव टू, मुझे अल्लाह के भी हुक्म पूरे करने हैं, बंदों के भी करने हैं, रिश्तेदारियां भी निभानी है, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है. तो एवरीथिंग, आई शुड नॉट बी लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, बल्कि आई हैव टू लिव अ वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियस लाइफ, इजंट इट? फिर अल्लाह ने आसमान भी बनाया, क्या जबरदस्त. और एक आसमान जो हमको नजर आता है, बट अल्लाह ने ऐसे 7 आसमान बनाए, डिजाइन किया. बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दी 7. अगर आप प्लेन से भी जाओ, एयरक्राफ्ट से जाओ, सैटेलाइट से जाओ, आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा कि फर्स्ट यहाँ खत्म हुआ और सेकंड यहाँ से शुरू होता है. नो. सो ये हमारे लिए गैब की बात है. दिस इज अनसीन वर्ल्ड. तो अल्लाह के लिए तो हर चीज का इल्म है और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है. सो सच परफेक्ट अल्लाह. और ये निशानियां हमें नजर आती है अपने आप के अंदर. कितने मिरेकल्स है कि जमीन के अंदर से कैसे वो छोटा सा पौधा मिट्टी को हटाकर और वो बाहर आता है, ऊपर आता है, जो अभी मैंने स्क्रीन पर शेयर किया था. उसके अंदर कितनी ताकत है कि वो मिट्टी को कैसे हटाकर, काट कर उसके अंदर से ऊपर आता है. तो ये किसकी क्रिएशन है? अल्लाह की क्रिएशन है. तो फिर मुझे ईमान अल्लाह पर लाना है, शुक्र भी अल्लाह का अदा करना है, एंड आई हैव टू लिव अ वेरी कॉन्शियस लाइफ. इस दुनिया में गुम नहीं हो जाना है, इसमें अपने आप को और अल्लाह को भूल नहीं जाना है. जो ऑर्डर्स अल्लाह ने मुझे दिए हैं वो सब मुझे पूरे करने हैं. क्यों? क्योंकि वो हर चीज का इल्म रखता है.
Allah is watching me. Allah knows میرے دل میں کیا ہے, میرے عمل کیسے ہے, what am I doing. ذرہ برابر بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس سے جھوٹ بول رہے ہیں, کس کا حق مار رہے ہیں, میرے دل میں کیا خیال آتا ہے, ایوری تھنگ اللہ نوز, isn't it. اللہ اکبر. تو پھر ایسے اللہ کے لیے میرے پاس صرف ایک ورڈ ہے, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنا اچھا بنایا اور ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کر دیا. پھر میں کیسے اللہ تیری نافرمانی کر سکتی ہوں. No, this is the lesson we learned today. Now you can share the reflections. Inshallah next class Monday سے ہمارا آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا کہ اللہ نے کیسے فرسٹ انسان کو بنایا. And that is very interesting. So kindly share your reflections. باجی shall I start? Yes, please. باجی میں یہ حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں دونوں جہانوں کے اخلاق نہ بتاؤں. پہلا, رشتوں کاٹنے والوں سے جڑو. دوسرا, نہ دینے والوں کو دو. تیسرا, ظالم کے قصور کو معاف کر دو. حدیث اوور. Yes, الحمدللہ. چاندن تھی. جی ہاں, میں کیسے انکار کر سکتی ہوں اللہ سبحان تعالیٰ کا, کیونکہ میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا until I was not born. میں بے جان تھی, پھر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. Yes, الحمدللہ. عنایا. جی I wanted to say کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کبھی بھی نہیں کرنے کا, because he has done everything for us and we just don't see it. Everything that is there is because of Allah Ta'ala only. So we should always be very thankful. الحمدللہ. Very good, عنایا. انجم. اللہ نے زمین میں ہر نعمت ہمارے لیے ہی بنائی ہے, تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. جی الحمدللہ. اور کوئی reflections? Kindly raise your hands. We have doctors also in the group. Yes, Kishore. السلام علیکم. میں نے آج سے یہ سیکھا کہ I should not be lost in this world. I have to live a very much conscious life. مجھے پورا ایمان اپنے اللہ کے اوپر لانا ہے, شکر اللہ کا ہی کرنا ہے اور اللہ کے سارے آرڈرز پورے کرنے ہیں. الحمدللہ. Yes, الحمدللہ. شاہین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 اعمال کو کرنے سے ہم جنت میں سلامتی کے ساتھ جا سکیں گے. سلام کو عام کرو. کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہے کہ when even if somebody is not happy with you, whether it is your relative, your neighbor or anybody, if you start with a salam, irrespective کہ وہ آپ سے ناراض ہے, but still just by starting a salam, you can break the ice and you can start a conversation. سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ نے دیا سب کچھ ہے, but there are not everybody is very lucky in that aspect. So کھانا کھلاؤ, اس چیز کو بہت عام کرو. رشتہ داریاں ملاؤ. irrespective whatever has happened in the past, let the bygones be bygones. اور کوشش کرو کہ سب ساتھ میں مل کے رہیں, پہلے کی طرح نہ صحیح but کوشش ضرور کرنی چاہیے. راتوں کو نماز پڑھو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے سب کے لیے یہ بولنا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور یہ, مگر رات کا وقت جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس نیند کو قربان کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہوں گے ان کو جنت میں ضرور جگہ ملے گی. Yes, inshallah. Very good. Well said. جی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا بنائی. ہم کو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق میں ہم کو بہت بڑا درجہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے اچھے رسول بھیجے اور آخری نبی بھی ہم ان کے امتی کہلائے.
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو زندگی دی ہے وہاں پر ہم کو کمانے جنت کمانے کا ذریعہ دیا ہے. ہمارے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو ہم کیسے اللہ کا شکر نہیں ادا کریں. ایک آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ہم کتنے یہ ہو جاتے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آکسیجن ہر چیز ہمارے لیے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر پل شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین آمین. الحمدللہ. Yes, any other reflections? چلے دعا پڑھ لیں. باقی لوگ you can share your reflections with me انشاءاللہ. بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے فیلنگز اور جو بھی وہ سیکھتے ہیں یہاں سے. So you can do it personally. If you don't want to share here, no problem. Plus میں نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ ایک ہماری سسٹر ریورٹ ہے الحمدللہ, اور ان کو یہ لنک ملی اینڈ شی از جوائننگ ریگولرلی, اور ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. شی سیز کہ اگر میں ایک بھی سیشن مس کرتی ہوں تو مجھے ابھی دل نہیں کرتا ہے کہ میں کوئی سیشن مس کروں. Then she listens to the recordings. So alhamdulillah, kindly share the link with others جو بھی جوائن کرنا چاہے اور فائدہ اٹھائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ابھی منڈے کو ملیں گے نیکسٹ آیت کے ساتھ. اور یہ حدیث آپ کے لیے پھر سے پڑھتی ہوں کیونکہ آپ سب کے لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یہ علم سیکھنے کا راستہ اپنا لیا اور اس پر چل پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو یہ خوشخبری میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اسی علم کے راستے سے ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے, ہمارے والدین کے لیے, ہماری اولاد کے لیے بھی, اور ہمارے ریسپیکٹڈ ٹیچرز کے لیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We have two hand raised. Chan aunty, we will take these two reflections. Yes, Salma. السلام علیکم. انجم باجی, ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی کلاس جو ہے وہ سٹارٹنگ کی نہیں ہو پاتی ہے, نماز آج کل عشاء لیٹ ہوتی ہے, تو آپ کے ریکارڈنگز پچھلے 3-4 نہیں آئے ہیں, تو آپ پلیز شیئر کر دو گے. یس انشاءاللہ ہو جائے گی, کل تک وہ ریکارڈنگز اپلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ. رضوانہ آپا آپ شیئر کرنا چاہتی ہو؟ رضیہ آپا. اور خوشی ہے کہ آپ لوگ ریکارڈنگز بھی سنتے ہو اور السلام نوٹس علیکم. بناتے ہو. وعلیکم السلام. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ پڑھاتے ہیں اس کی ایک لائن تو بھی, ایک آیت ایسی ہو کہ ہم اس کو یاد کر کے آپ کو ایسا ہوم ورک کی طرح دیے تو آپ نے بہت اچھا ہوا. تو جیسے ٹیچر کا ہوم ورک دیتی تو فکر سے پڑھتے ہیں ایسے اس طریقے سے ہاں ایک تو لائن یہ تو آپ بھی لوگ, جیسے. اچھا یہ اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا ٹائم ریسٹرینٹ ہے, 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے نا, تو یہ آپ لوگ ہی ایز اے ہوم ورک, ایز اے پروجیکٹ کیوں اپنے بارے میں ایک ایک آیت کو لکھ کر, حدیث کو لکھ کر کسی کو ضرور بتائیں, اپنے ہی گھر میں شیئر کر لیں. سو ابھی آئی تھنک اس سے زیادہ اس کلاس میں ہم لوگ نہیں کر پائیں گے, بٹ آپ لوگ خود اسے کریں, اور اگر آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو آئی ول آلسو چیک اٹ. آئی ڈونٹ مائنڈ چیکنگ اٹ, بٹ یہاں کلاس میں ہم لوگ نہیں کر پائیں گے. آپ لوگ ضرور گھر میں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.